Should we do Jai Radha Madhav or we'll just yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Radha Madhav, you can please start. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira जय मिश्रपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे सत्संग Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. So you will be translating line by line. Yes, Prabhu. So topic is importance of reading Srila Prabhupada books. Prabhu, your voice is quite low, Prabhu. Just a minute.
It is full in this. Hare Krishna. Yes, Prabhu, it's quite clear now. Okay. So topic is reading Srila Prabhupada books, importance of reading Srila Prabhupada books. तो आज का विषय है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के पढ़ने का महत्व. Before discussing this topic, we will discuss what is the importance of reading Shastra in general. और इसको हम चर्चा करने के पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि शास्त्रों का अध्ययन हमारे जीवन में कितना आवश्यक है सामान्य रूप से. Those who don't read Shastra, they are demons. Prabhu, again your voice is became low, Prabhu. Those who don't read Shastra, they are demons. हाँ, जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं वो लोग असुर कहलाते हैं. You should not go and tell this non-devotees. प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रचार करते वक्त ऐसे हमको जो लोग भक्त नहीं है उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए हमको. This is for just for our understanding. ये हमारी स्वयं की समझ के लिए है. I will elaborate on this point. तो मैं इसको विस्तार रूप से बताऊंगा. In Bhagavad Gita, 16th chapter, Krishna says, demons, they don't know what to do and what not to do. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि असुरों को पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. So 16th chapter is divine and demonic natures, Daivi and Asuri gunas. Prabhu ji, this your voice it is clear, but sometimes is I don't know what happening. Sometimes going Should I take this front? Anyway, I will just remove it. Suddenly is becoming low and then suddenly is coming. Yes. Just a minute. We'll do some adjustment. Thank you. Technology means there will always be some issues. yes. Okay, I'll manage. Thank you, Prabhu. So 16th chapter, he describes divine and demonic qualities. 16वें अध्याय में आसुरी और दैवी स्वभाव के बारे में बताया गया है. So in the 7th verse it is said, pravritim cha nivritim cha jananam vidurasura na shaucham na pichacharo na satyam teshu vidyate. Demons, they don't know what to do and what not to do. Neither they have cleanliness, truthfulness. Yeah. तो 7वें श्लोक में बताया गया कि असुरों को पता नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और न ही उनके अंदर शौच और सत्य के गुण होते हैं. So demons, they don't know what to not do, what not to do because they don't study or hear Shastra. तो क्यों उनको नहीं पता होता क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते या श्रवण नहीं करते. Towards the end of that chapter, again Krishna says, we should decide what to do, what not, based on Shastra Pramana. और इस अध्याय के लगभग अंत में भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हमें क्या कार्य और क्या अकार्य है इसको व्यवस्थित करना चाहिए शास्त्रों के प्रमाण के ऊपर. शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य विजानतः. And also another verse is there towards the end. Ya shastra vidhimustraja vartate kamakaratah nasa siddhim avapnoti
na sukam na param gatim. So those who don't follow Shastra Vidhi, regulations of the Shastra, they will not attain supreme destination, neither happiness in this world or in the future. तो इसी अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में प्रकाश प्रभु जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर रूप से बताया गया 23वें श्लोक में, कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो न तो इस जीवन में और न ही उनका जो परम गति वो उनको प्राप्त नहीं हो सकती. And again, who is a demon is more precisely described in the 17th chapter. और कौन असुर है इसको और भी साफ साफ रूप में इसको 17वें अध्याय में बताया गया. So there Krishna says, Ashastra vihitam goram tapyante ye tapo janaha dambhahankara samyuktaha kamaraga balanvitaha harshayanta sharira chetasaha vidyasuram nishchayan. So Krishna says, Than vidyasuram nishchayan. You should definitely know that such person is a demon. And who is that? Krishna describes in detail. तो वहां पर कहते हैं कि आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति असुर है, और कौन सा वो व्यक्ति है वो आगे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण. Shastram vihitam goram tapyante ye tapojana. Generally, he engages in different kinds of activities which are not described in Shastra. तो सामान्य रूप से वो ऐसे कार्यकलाप में युक्त होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है. Basically, from this we understand that scriptures guide for our life. तो इससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्र ही हमारे जीवन में हमको मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं. When Lord Krishna created this world, or inverse, along with the creation, he gave these scriptures so that we follow them and make our life perfect. तो भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना के साथ साथ में इसके साथ साथ ही हमको शास्त्र भी दिए जिसका पालन करके हम लोग अपना जीवन सिद्ध कर सकते हैं. So Prabhupada gave example, just like when you bring an electronic item, along with that you get a manual. So similarly, along with the creation, so Shastras are given as manuals. So therefore, Shastras are manuals of creation. तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज जब लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, तो साथ में एक मैनुअल पत्रिका मिलती है जिसमें उसके बारे में ज्ञान होता है कैसे उसको ऑपरेट करना है. उसी प्रकार जैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की, उसके साथ ही साथ में हमको उसका मैनुअल जो है वो शास्त्र दिए. वो शास्त्र जो है वो सृष्टि के मैनुअल हैं. So next point is, what is the significance of reading Shastra in our bhakti life? तो अगला विषय वस्तु है, अगला बिंदु है कि हमारे जीवन में, भक्तिमय जीवन में शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्ता है. So in Bhagavad Gita again, we see in the 2nd chapter that if we want to focus our mind and intelligence on spiritual life, our intelligence should be very pure. दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ बताया गया कि जब हम अपने मन और बुद्धि को आध्यात्मिक जीवन में अगर इंगित करना चाहते हैं तो बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए. That pure intelligence or spiritual intelligence is developed by reading or hearing Shastra. और ये पवित्र बुद्धि जो है, शुद्ध बुद्धि, ये तब उत्पन्न होती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन या श्रवण करते हैं. So Krishna says, he uses the word vyavasayatmika, focused intelligence. तो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में जब ये श्लोक आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि, 40वें श्लोक में वहां पर कहते हैं कि एकनिष्ठ बुद्धि, एकनिष्ठ होना.
be able to focus in spiritual life. I'm sorry, Prabhu, I could not hear you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. I'm not able to. I think Prabhuji has lost it. Again, he will rejoin. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. So if our intelligence is many branched, then we will not be able to focus on spiritual life. तो अगर हमारी बुद्धि जो है वो बहुत शाखाओं में विभक्त है, तब वो हम एक निष्ठ नहीं हो पाएंगे. So Bhakti Yoga or any yoga system is called as Buddhi Yoga, yoga of intelligence. तो इसलिए भक्ति योग को, हम योग सिस्टम को, योग प्रणाली को बुद्धि योग कहते हैं, जिसका मतलब है, अर्थ है कि बुद्धि का योग. In Bhakti Rasamrita Sindhu also, when Rupa Goswami describes Vaidhi Sadhana Bhakti, he says there is lot of usage of intelligence there. भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जब बताते हैं वैदिक भक्ति के बारे में, साधना भक्ति के बारे में, तो वहां पर भी वो इस बात पर बल देते हैं कि इसमें बुद्धि का बहुत प्रयोग है. Because we are supposed to divert our material senses and mind from material objects and engage them in Krishna's service. Therefore, intelligence is required. क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तु से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त करना होता है, और उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है. Therefore, to nourish that spiritual intelligence, we need to hear from Shastra. और इसीलिए उस बुद्धि को पुष्ट करने के लिए हमें शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन की आवश्यकता होती है. And intelligence, what is the function of the intelligence? Intelligence is supposed to make judgment, decide what to do and what not to do. तो बुद्धि के कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है कि ये भेद करना कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उचित है, क्या अनुचित है. So therefore, there is lot of use of intelligence in spiritual life. और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में बुद्धि का बहुत उपयोग है. Later stages of devotional service, when we are spontaneously attached to bhakti, then we don't need to use so much intelligence. But in the beginning, we need to use lot of intelligence. तो बाद में जब पश्चात में हम देखते हैं कि जब स्वाभाविक भक्ति उत्पन्न हो गई है, राग भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तब उस समय बुद्धि की उतनी आवश्यकता नहीं होती. लेकिन हम देखते हैं आरंभ में, जब हमें आरंभ में भक्ति में आते हैं, तो बुद्धि की बहुत आवश्यकता हमें होती है. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, when Rupa Goswami describes 64 limbs of devotional service, so many angas of bhakti are connected with the scriptures. श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में जब व्याख्या करते हैं भक्ति के 64 अंगों के बारे में, तो उसमें कई अंग जो हैं वो शास्त्रों से ही, शास्त्रों के ऊपर आधारित हैं, शास्त्रों के अध्ययन से आधारित हैं. The 54th anga is Shastra Seva. जैसे कि 54वां अंग जो है वो शास्त्र सेवा के नाम से जानते हैं उसको.
Where Rupa Goswami quotes from Skanda Purana to explain the importance of hearing or reading Vaishnava scriptures. और वहां पर रूप गोस्वामी स्कंद पुराण से व्याख्या करते हैं, जहां पर वो समझाते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन या श्रवण की कितनी महिमा है। वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति ग्रहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं वसति नारद। So I will just read the translation. O Narada, fortunate are those people in this world who hear and read the Vaishnava scriptures. तो वहां पर अनुवाद में बताते हैं कि नारद से कहते हैं, नारद से कि हे नारद, इस संसार में वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का श्रवण करते हैं। Krishna is pleased with them. और भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। Those who worship the Vaishnava scriptures in their houses become free from all sins. और जो लोग वैष्णव शास्त्र को अपने गृह में उनका आराधना, उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। And are praised by the devatas. और देवता गण भी उनकी प्रशंसा करते हैं। The Supreme Lord Narayana himself lives in the house. और भगवान नारायण उनके घर में विराजमान रहते हैं। Where written Vaishnava scriptures have appeared. जहां पर वैष्णव के द्वारा लिखित जो शास्त्र हैं वो वहां पर अगर उनके प्रकट हैं। So basically Vaishnavani tu shastrani ye shranvanti patanti cha. So here the word patanti comes there, means reading. Shranvanti and patanti means hearing and reading. तो यहाँ पर शब्द श्रवंती और पठंती आ रहा है। इसका मतलब कि श्रवण करना और पठन करना, अध्ययन करना। They are very fortunate. Krishna prasidati, and Krishna becomes pleased with them. जैसा हमने सुना कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होते हैं। Now in Bhagavad Gita, also we see Krishna says in the 18th chapter that those who study this Bhagavad Gita, they worship me by their intelligence. और भगवत गीता में बोलते हैं भगवान 18वें अध्याय में किस प्रकार से कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो लोग अपने बुद्धि से सेवा कर रहे हैं। And Krishna becomes pleased when we study Shastra. तो अभी हमने श्रवण किया कि जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। I'm sorry, Prabhu. Again, your voice became like initially like it's not coming now. So it's very low. If Krishna becomes pleased, then that is our perfection of life. हाँ, तो अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे जीवन की पूर्णता है, सिद्धता है। And much more here, Vaishnavani tu shastrani ye archante grahe nara sarva papa vinirmukta bhavanti suravanditaha. So those who worship Vaishnava scriptures, sometimes people say that we don't have time to read. Even if they keep and worship also, then they become free from all sins and they become worshipable for demigods. तो कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है अध्ययन करने के लिए, तो यहाँ पर बताया गया कि जो लोग केवल उनकी पूजा करते हैं वैष्णव शास्त्रों की अपने घर में, तो वो सभी देवताओं के द्वारा पूजित हो जाते हैं। When they go for book distribution, they tell this to convince
non-devotees to take books. तो कभी कभी भक्त लोग जब जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए तो जो लोग अभक्त हैं उनको कहते हैं, उनको पुस्तक वितरण करने के लिए इस प्रकार की बात कहते हैं। तिष्ठति वैष्णव शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे तत्र नारायण देव स्वयं वसति नारद। So when there are Vaishnava literatures in our home, Vaishnava scriptures, then Lord Narayana personally comes and resides in that house. तो जब ऐसे वैष्णव के द्वारा रचित जो शास्त्र हमारे घर में रहते हैं तो भगवान नारायण स्वयं आके वास करते हैं। So if you want to invite Krishna, if you want Krishna to come to your house, you should keep Vaishnava literatures in your house. तो हम सब भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहते हैं, अगर भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो अपने घर में हमको वैष्णव शास्त्र रखने चाहिए। So now those who are hearing, if you don't have all the set of Srila Prabhupada books, you should have one full set of Srila Prabhupada books in your house. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी की पूरी पुस्तकों का एक सेट अपने घर में होना चाहिए। Then Krishna also will come along with those books. और तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं फिर वो वास करेंगे इन पुस्तकों के साथ में। And Srila Prabhupada, he said that in the 10th chapter, Bhagavad Gita, 9th verse, purport, he says, thus realize souls in Krishna consciousness, take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवद गीता में कि जब जैसे ऐसे दिव्य लोग, जब भक्त लोग मिलते हैं आपस में भगवान के दिव्य विषय में श्रवण में इतना परस्पर आनंद लेते हैं, जैसे कि एक युवक युवती जब वो मिलते हैं तो आनंद लेते हैं, उस प्रकार से। That statement Prabhupada writes, realize souls in Krishna consciousness, take continual pleasure in hearing such transcendental literatures. Basically, Srila Prabhupada, that verse, anyway, I'll explain on that. So verse is Machita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Khatayanta Mam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. So devotees discuss about me among themselves. तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त लोग वो मेरे बारे में परस्पर वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं एक दूसरे से। In that way they experience great transcendental happiness. और उसके द्वारा वो एक महान दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। In the purport, Srila Prabhupada, he explains in connection with Bhagavad Gita and especially Bhagavatam, that Bhagavatam is very dear to Vaishnavas and Bhagavatam is filled with Krishna's pastimes, etc. और तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर उसके संबंध में विशेष रूप से भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भागवतम वैष्णव को बहुत प्रिय है। वो जो भक्त लोग हैं आपस में परस्पर भागवतम को लेकर के बहुत आनंदित होते हैं। So he gives an example, just like young boy and young girl take pleasure in each other's association, similarly devotees take pleasure in hearing and reading Shastra. तो वहां पर उदाहरण देते हैं श्री प्रभुपाद जी, जैसे एक नवयुवक और नवयुवती एक दूसरे के संग में आनंद लेते हैं, उसी प्रकार भक्तगण वैष्णवगण वो श्रीमद् भागवतम के साथ में आनंद प्राप्त करते हैं। Now this attraction between young boys and girls is very strong in this material world, and that is a basic principle of our material existence. तो एक नवयुवक और नवयुवती के बीच में जो संबंध होता है वो बहुत ही शक्तिशाली संबंध बताया गया है और वही आधारभूत कारण है इस भौतिक जगत में बद्धता का। That is the
highest cause of bondage and suffering in this world. और वो सर्वोच्च कारण है इस संसार में बंधन का और कष्ट का. So they are spontaneously attracted to each other. उसमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लोग आकर्षित होते हैं, पुरुष और स्त्री. Similarly, realized souls in Krishna consciousness. So those who are advanced in Krishna consciousness, they are attracted to hearing books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. उसी प्रकार जो अनुभूति प्राप्त किए हुए जो उत्तम भक्त हैं, उच्च स्तर के भक्त, उसी प्रकार का वो आनंद प्राप्त करते हैं, आकर्षण प्राप्त करते हैं भगवत गीता भागवतम के श्रवण और अध्ययन में. So this is symptom of advanced devotee. तो ये लक्षण है उत्तम भक्तों के. So sometimes we ask this question: what are the symptoms of advanced devotee, or how we can understand that we are making progress in Krishna consciousness? So that can be understood how much we are taking pleasure in reading and hearing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कैसे उन्नत भक्त कैसे पहचान सकते हैं या कैसे हम कृष्ण भावना भावित जीवन में उन्नति कर सकते हैं. तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना आनंद हम ले रहे हैं या आनंद हमें मिल रहा है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अध्ययन और श्रवण में. So in Chaitanya Charitamrita one purport. Okay, till now we discussed that in general why we should study Shastra. Now we will discuss particularly why we should read Srila Prabhupada books. तो अभी तक हमने ये चर्चा किया कि सामान्य रूप से हमें शास्त्रों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, और अब हम चर्चा करेंगे कि विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमारे जीवन में अध्ययन करना क्यों आवश्यक है. We should understand the significance of Srila Prabhupada's personality and his qualities and his position in the Vaishnava world. तो उसके पहले हमको श्रील प्रभुपाद जी के उनका जो व्यक्तित्व है और वैष्णव संसार में, वैष्णव जगत में उनकी क्या स्थिति है, उनका जो विशेष योगदान है, पहले हमें उसे समझना होगा. So Srila Prabhupada was empowered representative of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के एक शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि हैं. So Chaitanya Mahaprabhu had predicted that this chanting of holy names will spread all over the world, and Srila Prabhupada fulfilled that. That shows that how Srila Prabhupada is very close to Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी के सभी नगर और आदि ग्राम में जो भगवान का नाम है, उनका पवित्र नाम का प्रचार प्रसार होगा, और श्री प्रभुपाद जी ने इसको पूर्ण किया. तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितने भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के कितने समीप हैं वो. Also in Chaitanya Charitamrita it is said that Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartana. Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartana. The dharma of Kali Yuga is Sankirtana, chanting holy names of the Lord, but without the Shakti of Krishna one cannot spread that. तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक में बताया गया कि कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन इसका जो प्रचार है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदत्त हुए बिना कोई नहीं कर सकते. And Srila Prabhupada is called as Senapati Bhakta. He is commander in chief of, in this army of spreading Krishna consciousness all over the world. तो पूरे जगत में कृष्ण भावना भावित का प्रचार करने के लिए उनको सेनापति भक्त कहते हैं. So he was very close to Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is.
तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के बहुत समीप हैं। So by hearing his message, then we will also go close to Krishna. इसलिए उनके द्वारा दिए गए संदेश को श्रवण अध्ययन करने से हम भी भगवान कृष्ण के समीप हो सकते हैं। And it is said that we should hear Krishna Katha from a pure Vaishnava. Otherwise, that will be poisonous. तो ऐसा कहा गया कि जो भगवान की कथा है वो हमको शुद्ध वैष्णव के द्वारा श्रवण करना चाहिए, नहीं तो वो विषपूर्वक हो सकता है। वैष्णवो मुखोद्गीर्णं पूतं यद् हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्छिष्ट यथापयः. Just like milk which is touched by a serpent, although appears white, but it is poisonous. Similarly, Krishna Katha, which is spoken by non-devotees, will not give the actual result. In fact, it may destroy our spiritual life. तो जैसे कि दूध जो होता है वो अमृत के समान है, लेकिन अगर कोई सर्प उसको जब डस लेता है तो वो विषपूर्वक दूध, वो भी सफेद ही दिखता है, लेकिन वो दूध वो जीवन की हानि कर सकता है। उसी प्रकार जो अवैष्णव हैं उनके मुख से हरि कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नाश कर सकते हैं। And Srila Prabhupada is a pure devotee. He is a devotee of highest order. तो श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और सबसे उच्चतम स्तर के भक्तों की श्रेणी में आते हैं। Among devotees also there are different kinds of devotees. In Shastra there are 3 kinds of devotees are explained: Kanishta, Madhyama and Uttama. So Srila Prabhupada is a devotee of highest order, and therefore we should hear from him. तो शास्त्रों में 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी बताई गई है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। प्रभुपाद जी सबसे उच्चतम स्तर के भक्त हैं, इसलिए उनके संदेश को हमें श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। Of course, I am using often hearing, but hearing means or reading means it is hearing. Both are one. तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हियरिंग, बल्कि यहाँ इसका मतलब श्रवण करना, लेकिन हमें समझना है कि अध्ययन और श्रवण दोनों एक ही हैं। So reading means we are hearing from the author. क्योंकि अध्ययन करने का अर्थ है कि हम श्रवण कर रहे हैं जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं। And Srila Prabhupada also, he says that I am giving Bhagavad Gita as it is. श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको भगवद गीता यथारूप प्रदान कर रहा हूं। So whatever he presented the Shastra as it is. तो जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया सबके समक्ष, जितने भी शास्त्र, उसको यथारूप ही प्रस्तुत किया। So this is why we accept Srila Prabhupada. इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण रूप से उनको स्वीकार करते हैं। Why we did not accept some Baba, Ai, Amma, or some bogus Sadhguru and all these people? Why? Because they are not presenting the message of Krishna and Shastra as it is. तो क्यों हम लोग और किसी जैसे कि बाबा, अम्मा और तथाकथित जो सदगुरु, इस प्रकार के जो लोग ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग, इस प्रकार के लोग, उनको क्यों हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप प्रस्तुत नहीं करते। Many times, these so-called sadhus, gurus, and they are caught in so many scandals, and then people realize that they were bogus. और कई बार ऐसे साधु गुरु जो होते हैं वो किसी इस प्रकार की कांड में जब फंस जाते हैं वो,
तब लोग समझते हैं कि अरे ये तो धूर्त था ये। But what people do not know that from the beginning only they are cheaters because they are not presenting uh, Krishna's message and message of the Shastra as it is. लेकिन वो लोग क्या नहीं जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि शुरुआत से ही वो ठग हैं। उनका कांड पता होने के बाद नहीं, शुरुआत से ही। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण और शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसके बारे में बताते नहीं हैं। So because people they don't know Shastra, so that they should take the message of Shastra. Therefore, in the beginning, I said that why we should study Shastra in our. What is the importance of Shastra in our life? तो क्योंकि वो जानते नहीं हैं शास्त्र के बारे में, इसलिए हमने पहले चर्चा की कि कितना महत्व है शास्त्रों का हमारे जीवन में, शास्त्रों को जानना, शास्त्रों को अध्ययन करना। So therefore, we have a we give special importance to Srila Prabhupada in our life. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को हम एक विशेष स्थान देते हैं हमारे जीवन में। Not only within ISKCON, in broader Gaudiya Vaishnava society also Srila Prabhupada is very important. Why? Because he was the one who spread Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission all over the world. खाली अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में नहीं, विस्तार रूप में देखा जाए तो सारे गौड़ीय जो समाज है, वैष्णव समाज, उसमें श्री प्रभुपाद जी का स्थान बहुत सम्मानीय है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के इस विशेष संदेश को यथारूप प्रचार प्रसार किया। They should also read his teachings. तो उन लोगों को भी श्री प्रभुपाद जी के जो शिक्षाएं हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। And especially in the Western countries, before Srila Prabhupada came, so no one knew about Krishna Bhakti, Krishna consciousness and spiritual life. So Srila Prabhupada is the whole and soul for them. तो पाश्चात्य देशों में विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी के जाने के पहले कोई भी कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इस विशेष प्रणाली के बारे में कोई अवगत नहीं थे। इसलिए प्रभुपाद जी उनके लिए सर्व कुछ, सर्वोपरि सब कुछ प्रभुपाद जी उनके लिए हैं। And if we don't read Srila Prabhupada books, or these books which Srila Prabhupada has translated, then we will not make a progress in spiritual life. तो अगर हम लोग श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो उन्होंने अनुवाद किए हैं, टीकाएं दी हैं, और उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। Or we will not go deep into Krishna consciousness. और या तो फिर हम कृष्ण भावना भावित जीवन में गंभीर नहीं हो पाएंगे। So we will become like superficial, some sentimental devotees. और तब हम लोग खाली एक कृत्रिम रूप से, बाह्य रूप से, एक जो जज्बाती, जैसे अंधविश्वासी जैसे भक्त होते हैं, उस प्रकार से हम रहेंगे। We can, of course, we can go on speaking on that. But there is one quote of Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita. I would like to read that. All the devotees connected with this Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated. तो इसके बारे में हम और भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन समय की गरिमा को रखते हुए अभी हम लोग एक कोट पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृतम से। वहां प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों से को जितने भी पुस्तकें मैंने अनुवादित की हैं वो सब अध्ययन करनी चाहिए। Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. नहीं तो कुछ समय के पश्चात वो लोग समान रूप से खाली भोजन ग्रहण करेंगे, निद्रा लेंगे और उनका पतन हो जाएगा। Thus, they will miss the opportunity to attain the eternal blissful life of transcendental pleasure.
और तब वो दिव्य जो शाश्वत जीवन है, आनंद पूर्वक जीवन, उसको प्राप्त करने का अवसर गंवा देंगे। Now, if you elaborate these statements of Srila Prabhupada, we are very fortunate that we have come to Krishna consciousness, but that fortune will become misfortune if we don't read Srila Prabhupada books. तो अगर इस प्रभुपाद जी के वाक्यों को हम थोड़ा और व्याख्या करें तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ में आ गए हैं, लेकिन अगर हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं तो वो हमारा दुर्भाग्य होगा। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अभी उनका तिरोभाव हो गया। वो कहते हैं कि सोत्र स्वामी उनका नाम था, तो उन्होंने वो कहते हैं कि we don't know what is there in Prabhupada Bhaktivedanta purports. तो श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं परम पूज्य सोत्र स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि हमको पता नहीं है कि श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों में क्या क्या है। हाल ही में हमारे गुरुदेव मुझे बताया कि एक विषय के ऊपर दूसरे एक मध्व संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है, वहां का एक ग्रंथ आप पढ़ो करके मुझे बताया उन्होंने। So in recent times, Prabhuji said that his spiritual master, he asked him to read some book of the Madhva Sampradaya. There is one topic called Veda Paurishayatva, the infallible wisdom of Vedas. So on that there is a book in Madhva Sampradaya. So he asked me to read that. तो माधव संप्रदाय में एक पुस्तक जो है इस विषय वस्तु पर वेद और पौरुषेय, जो अचूक वेदों का सिद्धांत है उसके बारे में, तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए प्रभु जी को बताया गया। I am yet to procure that book. I have not got that book, but still I thought before reading that, let me just try to collect material from Srila Prabhupada books on this topic of Veda Paurishayatva. तो प्रभु जी अभी तक वो पुस्तक ले नहीं पाए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी उस पुस्तक को लेने के पहले मैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से ही इसी विषय पर वेद और पौरुषेय के ऊपर मैं जितना भी कुछ मुझे मिलता है उसको पहले मैं इकट्ठा करता हूँ। I just from memory, whatever I previously read Srila Prabhupada or studied Srila Prabhupada books, I went on making points and I ended up with some 25 points. तो शुरुआत से जब मैंने श्री प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया था, तब से मैंने अपने स्मरण से मैंने कुछ बिंदु उस पे बनाए, तो लगभग 24 प्रभु। I'm sorry प्रभु, I'm not able to hear you प्रभु। 24-25, okay. हाँ, तो 24-25 बिंदु प्रभु जी ने उसके ऊपर बनाए। And each of these points can be expanded into one lecture of 2 hours. और सारे जो बिंदु हैं, एक एक बिंदु के ऊपर 2-2 घंटे के प्रवचन हो सकते हैं। And if you write minimum 200 pages, 250 pages of books we can write. Minimum. There is no maximum limit. और कम से कम अगर हमें लिखना हो इसके ऊपर तो कम से कम 250 से 300 पेजों की पुस्तिका हम लोग लिख सकते हैं, कम से कम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। So I was surprised, astonished that how much what all is Prabhupada has given in his books. तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था, विस्मित हो गया ये देख करके कि प्रभुपाद जी ने पुस्तक में कितना भंडार दिया है। So therefore, we don't know what is there in Srila Prabhupada's books. इसलिए हम लोग को ये पता नहीं है कि श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कितना अमूल्य ज्ञान है। Sometime we will discuss that Veda Paurishayatva based on Srila Prabhupada. I'm sorry, Prabhu. Again, your voice became low, Prabhu. I could not hear.
Sometime in the future, we will discuss the topic of Veda Paurushatva in detail based on Srila Prabhupada teachings. तो कभी हम लोग आगे भविष्य में इसके ऊपर चर्चा करेंगे वेद और पौरुषे के ऊपर प्रभुपाद जी की पुस्तकों के द्वारा. One more senior devotee, he said that presently in ISKCON, if someone reads 1 hour per day, it is a very big thing. तो एक वरिष्ठ भक्त ने प्रभु जी से कहा कि इस वर्तमान समय में कोई अगर 1 घंटे नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य है. That devotee, he travels all over the world and preaches, so he knows the situation. I'm sorry, Prabhu. Again, your voice went off, Prabhu. That devotee, he travels all over the world and he knows the situation, I said. हाँ, तो चूंकि वो सभी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं तो उनको सभी की स्थिति का ज्ञान है. So this basically the culture of reading has gone down. तो हम देख सकते हैं कि जो अध्ययन करने की जो संस्कृति है वो नीचे जा चुकी है. Because today we have so many these gadgets, internet and all these things. So people get distracted. क्योंकि आज के समय में वर्तमान समय में इतना सब कुछ आ गया है ये गैजेट वगैरह कि सब लोग उनका ध्यान बट चुका है बहुत सी चीजों में. So here we come to a point of importance of reading books directly than reading from electronic media. तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों का अध्ययन करने की बात कर रहे हैं बजाय कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अध्ययन करते हैं. You may read in electronic media, but there will be lot of distractions. The focus which we get by reading books, that we will not get in electronic media. तो जो हम लोग को एक निष्ठ जो ध्यान जो एकाग्रता मिलती है पुस्तक का अध्ययन करने में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ने में नहीं मिलती. वहां पर बहुत विचलन होता है. Therefore, kindly read the books. Don't read in all these phones, tabs, or laptops, etc. Again, it's gone, Prabhu. I'm sorry, Prabhuji. Therefore, we should read from the books, not through electronic media, these phones, laptops, or tabs, etc. इसलिए हमको पुस्तकों से ही अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए न कि फोन या लैपटॉप या और किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा. And another thing is that the whole modern socio-economic system, social system, and the lifestyle doesn't encourage reading and scholarship. और आजकल का जो आधुनिक ये जो हम देखते हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो हमको ये स्वीकृति प्रदान नहीं करती है जिसमें कि कोई अध्ययन करें और विद्वता प्राप्त करें. If you go back in history in time, 100 years in India, most of the people they used to be illiterate. अगर हम कुछ वर्षों पहले जाकर के देखें इतिहास में तो ज्यादातर लोग जो होते थे वो अशिक्षित हुआ करते थे. They were not able to even sign their names. और बहुत से लोग तो अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे. But they would know hundreds and hundreds of verses from the Shastras. लेकिन ऐसे लोग भी 100 से भी ज्यादा 100 श्लोकों को उनको कंठस्थ हुआ करता था. शास्त्रों से वो बोलते थे. Just because they lived very simple life, they had ample time and peace of mind to hear Shastra from qualified Brahmanas. क्योंकि उनका जीवन बहुत सरल हुआ करता था. उनका जीवन शैली बहुत सरल था. उनके पास पर्याप्त समय हुआ करता था. शांत मन से वो योग्य पुरुषों से श्रवण करके वो कंठस्थ कर लिया करते थे. We know that in modern day people they do not know the religious, cultural, and philosophical history of India.
but those who understand that, they know that how people every day they would hear Ramayana, Mahabharat morning and evening. तो लोगों को ये लोग अवगत नहीं है भारत के जो सिद्धांतिक इतिहास है या फिर जो धार्मिक हमारा इतिहास है, जहां पर कि लोग प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल को रामायण महाभारत इसका श्रवण करते थे. And from scholarship point of view, if we want to discuss, they achieved such high level of scholarship in different fields of knowledge that we cannot imagine now in this modern society. और अगर विद्वता की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में इतने इतने विद्वान हुआ करते थे, वो इतना उनका स्तर उच्च था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. I'll just briefly tell some story of Shankaracharya. From that we can understand that how because of living a simple life close to the nature, that intellectual culture flourished in this country. तो एक मैं छोटी सी कथा बताऊंगा शंकराचार्य जी के जीवन से, तो हमसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ऐसा सरल जीवन जो प्रकृति के बिल्कुल समीप हो, प्रकृति के साथ साथ में, वो कितना उनको प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहित करते हैं इस जो पूर्ण ज्ञान है उसको समझने के लिए. So Shankaracharya, while traveling, in his traveling and preaching, he went to Mahishmati. There is a place called Mahishmati. तो शंकराचार्य जी जब उसमें भ्रमण कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक स्थान पर गए जिसका नाम था महिष्मति. There he met one great scholar, and this in cultural, religious, philosophical history of India, it's a one of the greatest movements. तो वहां पर वो एक विद्वान से मिले, और ये विशेष रूप से ये जो समय था, उस समय भारत के इतिहास में एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय था ये. He went to that village, and as soon as he enters, he comes across some ladies. They were just they were walking and going, and they were conversing in Sanskrit. And he asked them, "Where is the house of Mandan Mishra?" तो वहां पर कुछ स्त्रियां जा रही थी, आपस में बात करते हुए संस्कृत में बातें कर रही थी, आपस में जा रही थी. तो उसने पूछा कि यहाँ पर मंडन मिश्रा का घर कहाँ पर है. So Mandan Mishra was a Mimamsa scholar. Prabhu, your voice again gone, Prabhu. So Mandan Mishra was a scholar of Karma Mimamsa branch of philosophy. तो कर्म मीमांसा जो एक शाखा है सिद्धांत की, उसी के वो बड़े विद्वान थे. So those ladies answered in Sanskrit that the house in front of which two parrots are discussing Swata and Paratattva Vada, that place you should understand as house of Mandan Mishra. तो उन स्त्रियों ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिस घर के समक्ष दो तोते स्वतः और परतवाद इसके ऊपर अगर वो वार्तालाप कर रहे होंगे, तो वही घर आप समझिएगा कि मंडन मिश्रा का घर है. That means even parrots were also discussing philosophy. इसका अर्थ है कि उस समय जो वहां के तोते थे, वो लोग भी सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया करते थे. Then Shankaracharya goes there, and then there was one of the greatest debates in Indian history, Indian cultural philosophical history. तब वहां पर शंकराचार्य जी जाते हैं, और भारत के सैद्धांतिक सांस्कृतिक जो इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में. So from that we can understand that how, in Indian culture, even women were speaking Sanskrit, birds were discussing philosophy,
So you can imagine the intellectual level of the people of this country. तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे सरल जीवन में हम देख सकते हैं कि ऐसा स्थिति था भारतवर्ष का, ऐसी संस्कृति थी कि स्त्रियां लोग भी संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं, यहाँ तक कि पक्षी लोग भी आपस में सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. This intellectual scholarship and Brahminical, what we call as Brahminical culture, flourished in the environment of simple living and high thinking. तो ये जो बौद्धिक जो संस्कृति या जो हम ब्राह्मणिकल, जो ब्राह्मण की संस्कृति बता रहे हैं हम लोग, ये संस्कृति जो है, ये जो सादा जीवन होता है, सरल जीवन, ऐसे वातावरण में ये और प्रफुल्लित होता है. Brahmana means voluntarily accepting poverty. ब्राह्मण का अर्थ है कि जो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से वो निर्धनता का चयन करते हैं. Therefore, he is able to focus his mind in Shastra. और इसीलिए वो अपने मन बुद्धि को शास्त्र में एकनिष्ठ कर पाते हैं. Those who are interested in Bhoga Aishwarya Prasaktanam Thaya Paharita Chetasam, those whose consciousness is always absorbed in earning money, wealth, and sense gratification, they cannot attain spiritual intelligence. तो जो लोग हमेशा भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त रहते हैं, वो लोग आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते. Therefore, along with reading proper books, we should also develop these qualities of simple living and high thinking. Then we will be able to understand Shastras properly. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभु जी कि श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करने के साथ साथ हमको सादा जीवन और उच्च विचार, ये जीवन शैली अपनानी होगी, तभी हम शास्त्रों के गहरे तत्व को समझ पाएंगे. Because most of the examples, analogies which are given in the Shastra, they are connected with nature. क्योंकि ज्यादातर जो उदाहरण दिए गए हैं शास्त्रों में, वो स्वाभाविक जो प्रकृति है उनसे संबंधित है. Just like other day I was reading 10th canto of Bhagavatam, Janmashtami time, we read 10th canto of Bhagavatam. So there Vasudeva is preaching to Kamsa that how just like a insect which transfers from one leaf to another leaf, similarly living entity transmigrates from one body to another body. जैसे कि प्रभु बता रहे कि हम लोग जन्माष्टमी पे दसम स्कंद का अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो वसुदेव जो हैं, जब वहां पर वो सिखाते रहे हैं कंसादी को, तो वहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे जैसे कीड़े जो होते हैं एक लताओं से या एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं, उसी प्रकार जीव जो होता है वो एक जीवन से, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है. Or in the Bhagavad Gita first verse purport, Prabhupada says that just like a farmer in the paddy field removes all the weeds, similarly these Kauravas would be removed by Lord Krishna from this paddy field of Kurukshetra, like that he says. उसी प्रकार जैसे भगवत गीता के पहले श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी, कि जैसे जो किसान होता है वो अपने खेतों से जो अवांछित पौधे होते हैं उनको निकाल देते हैं, खरपतवार को, उसी प्रकार इस कुरुक्षेत्र के जो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, वहां से कौरवों जैसे जो अवांछित जो खरपतवार हैं उनको उखाड़ दिया जाएगा. This is one thing. Another thing is whatever the bhakti which is described in the Shastra can be implemented in our spirit, in our life, only when we live in the nature. और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो शास्त्रों में है उसको अपने जीवन में हम अपनाने में भी हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम प्रकृति के बिल्कुल समीप रहते हैं. For example, you want to offer Krishna butter. So if you don't have cows, how you will offer butter to Krishna? प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, हम सबको मनन करना चाहिए इस पर, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है, माखन,
और हमको माखन भगवान को अर्पित करना है, तो अगर हम गाय के साथ नहीं रहते हैं तो मक्खन कैसे अर्पित करेंगे हम? So you will offer Amul butter or butter. But Krishna will not be pleased with that. तो उस समय हम लोग बाजार से अमूल बटर ऐसे लेके आएंगे जो बहुत कड़ा होता है, तो निश्चित रूप से भगवान उससे बहुत प्रसन्न नहीं है। I don't know what brand of butter is there in the Middle East, but in India these are some famous brands. Yes. We get it, Prabhu. Here, Amul butter also we get it, Prabhu जी. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे खाड़ी देशों में क्या मिलता है, लेकिन भारत में तो अमूल बटर जो है मक्खन बहुत प्रसिद्ध है। But Krishna won't be pleased with that. लेकिन बिंदु यह है कि भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न नहीं होंगे। Anyway, so this is a purpose of studying Srila Prabhupada books or Shastra. We'll end here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are already late. If I am okay, but yes, if devotees have some questions. Yes, Prabhu. With your permission, Prabhu, we'll take some question, Prabhu जी. तो प्रभु करें कि ये महत्व है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने का। अभी हमारे पास समय है कुछ प्रश्न उत्तर के लिए, किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आज के विषय पर, तो प्रभु जी से हम लोग ये अवसर में प्राप्त है, हम प्रभु से उसका उत्तर सुन सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। वसंत प्रभु, you can, if anybody can raise the hand, you can unmute them, please. कोई जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। सोनी माता जी पीछे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं आप, कृपा करके प्लीज। वसंता प्रभु, कैन यू अनम्यूट सोनी गुप्ता जी? प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसा कि बताया भोग बटर, क्या बटर सही है लगाने भगवान जी को भोग? मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न, बता जी। Prabhu, question is that as you mentioned about this butter, so if we get such butter which is Amul or this kind of butter, whether we should offer or not, that's the question. You can offer, but the quality would be less. It's not good quality. But if you offer butter which is made from our own cows, then the quality will be good. So Krishna will be pleased. He will be more pleased with us. तो हम प्रभु जी का उत्तर है कि हम लोग अभी जो हमारे पास अभी उपलब्ध है तो हम उसको अर्पित तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो ऐसे बाहर से हम लेके आते हैं दोस्तों के द्वारा बनाए गए, वो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती। तो जो अगर हमारे पास खुद अगर हम समीप हैं, हमारे पास में गाय है, उससे हम दही बना के मक्खन बना रहे हैं, तो उससे जो भगवान प्रसन्न होंगे, ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो अच्छी गुणवत्ता का मक्खन है। हाँ जी। Sometimes in the name of Yukta Vairagya, we misunderstand devotional service. तो कभी कभी हम लोग युक्त वैराग्य को समझने में भूल कर बैठते हैं और भक्ति, जो भक्ति में सेवा क्या है उसको भूल जाते हैं। और जैसे कि प्रभु जी माता जी उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी। युक्त वैराग्य is meant for only few selected preachers. युक्त वैराग जो है वो कुछ ही चयनित किए हुए जो प्रचार प्रसार में युक्त हैं उनके लिए बनाया गया है। Grahasthas, Varnashrama and farm communities are actual with Yukta Vairagya. जैसे कि वर्णाश्रम और जो इस प्रकार के जो कार्यकलाप हैं, वर्णाश्रम जो फार्म कम्युनिटी है, वो वास्तविक युक्त वैराग्य है। We are offering Krishna very high quality devotional service. I'm sorry, Prabhu. I missed your voice, Prabhu. With the help of, if we are part of Varnashrama and farm communities, then we offer high quality of devotional service to Krishna.
तो अगर हम लोग इस प्रकार से वर्णाश्रम कार्यकलापों में, जहाँ पे फार्म कमेटी के साथ में हम सेवा में युक्त हैं, तो उच्च स्तर की जो हमारी सेवा है वो भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं माता जी? वांटेड टू आस्क समथिंग एल्स, नो? प्रभु जी, भगवान जी को और वैसे हम क्या क्या भोग नहीं लगा सकते? कौन सी दालें वगैरह, जैसे क्या चीज नहीं लगा सकते भोग? इसके बारे में वो क्वेश्चन इज व्हाट ऑल वी कैन ऑफर एंड नॉट ऑफर टू कृष्णा इन हरि भक्ति विलास. Sanatan Goswami has explained in detail what should be offered and what should not be offered. It's a big list, it is. We cannot go through now. But some senior devotee can help you what should be offered and what should not be offered. Or some other time we may discuss. तो माता जी, ये इसकी लंबी सूची है, हम आपको यहाँ पे दे देंगे माता जी, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कि आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। बहुरूप प्रभु, आपका कोई प्रश्न है प्रभु जी? थैंक यू माता जी। बहुरूप प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, पूछिए प्रभु जी। मैं ये अभी प्रभु जी जैसा बता रहा था कि सदा जीवन उच्च विचार, हम सब जैसा कि प्रभुपाद महाराज का बुक अध्ययन कर रहा हूँ, तो अभी प्रभु जी ऐसा बताया कि कैसा लेवल में उसका बुक अध्ययन करना है, जैसा बताया कि तो जैसा अभी माहौल ऐसा चल रहा है जो मतलब हम सब साधु संग नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभुपाद महाराज का जैसा बुक अध्ययन भी कर रहा हूँ तो उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जैसा पहले प्रभु जी बताया कि प्रभुपाद महाराज को अगर बुक को समझना है तो जैसा प्रकृति और ऐसा ये सब, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएगा तो। Hare Krishna Prabhu. So Prabhu, Bahurup Prabhu is from Nepal and he's staying here in the camp. So he's asking the question that you mentioned about that how important it is to read the book and also to understand the message which is in the Shastra. It's very essential, or it's conducive to live to live a simple life and high thinking, especially with the Varnashram and the farm community. So staying here in the camp and trying to read how we can reconcile these things, Prabhuji. Now in whatever situation we are in, we should continue reading. तो जिस भी स्थिति में है, पहली चीज तो ये है सिद्धांत कि हमको पुस्तकों का अध्ययन करना है। Side by side, we should also attempt to join some farm communities where devotees are practicing together and they are reading and hearing in the association of each other. और उसके साथ ही साथ हमको संभव प्रयास भी करना चाहिए कि जहाँ पर ऐसे वर्णाश्रम धर्म में ऐसे कुछ जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कम्युनिटी फार्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर भक्तों का संग प्राप्त करें, वहाँ पर जाकर के रहने का हम प्रयास करें, उनके साथ में संग में अध्ययन करना, वो उसका प्रयास करें। You don't need to go to America, you don't need to go to Middle East to earn our livelihood. Krishna is supreme opulent person, he can easily maintain us. और उसके लिए हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका या खाड़ी देश में भगवान श्री कृष्ण वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, सबके लिए बड़े आराम से सब कुछ वो उपलब्ध करा देते हैं। So Prabhupada, he said, all kinds of incompleteness is experienced due to incomplete understanding of the complete arrangement of the complete whole. तो प्रभु जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर वाक्य कि बताते हैं कि ये सारी हमारी अपूर्णता जो है वो अपूर्ण समझ के द्वारा है, जो कि पूर्ण भगवान के द्वारा जो पूर्ण रूप से प्रदान की गई है। थैंक यू प्रभु। सैली कुलकर्णी जी, आपका प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके अपने आप को। Hare Krishna. So my question is about the thing you mentioned about reading
And I rightly agree that when we are in the city life, it's difficult to, actually reconcile with what we are reading. And many times with our busy lives, we read for 15 minutes, then we give up, then kabhi phone pe khol liya, then you read it, then you close it. And even in general, even if you're reading, many times when I was in Mumbai, there used to be quizzes. I mean, what should be the attitude while reading Srila Prabhupada's books? Should it be an intellectual listing of just gathering facts that he's written, or what should be our mindset while reading these books? I mean, should it be just to, gain whatever he's written, like modern education? We read textbooks, we read them as textbooks, and then we forget it, or, I mean, that's my question. Prabhupada, one female disciple, I think, she asked Prabhupada, if I just chant Hare Krishna and if I don't read books, is that okay? So then Prabhupada, he said that by not reading books, you are doing Guru Avagya, because Guru has said that you should read books, so you should read book. Then that is offense to the chanting. You want to, Braj Prakash Prabhu, you want to translate? Yes, Prabhu, yes. तो माता जी का प्रश्न ये था कि आधुनिक समाज में हम देखते हैं वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जो अध्ययन कर पाते हैं वो कभी कभी 15-20 मिनट कभी फोन पे हमने देख लिया, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन है कि समय नहीं मिल पाता है। और कैसे अध्ययन करें हम? जब हम बॉम्बे में रहते थे तो वहां पर प्रश्न उत्तर हुआ करते थे, और क्या हमारा भाव होना चाहिए अध्ययन करने का? क्या जैसे हम लोग कोई और भी पुस्तक पढ़ते थे अपने अध्ययन पढ़ाई के समय में, वैसे ही एक टेक्स्ट बुक जो हमें समझना से बौद्धिक स्तर पर समझना है, खाली जानकारी प्राप्त करनी है, इस भाव से इसको अध्ययन करना है, कि क्या वास्तविक जो भाव होना चाहिए प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करने का? प्रभु जी ने उत्तर दिया कि श्री प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, महिला, तो उन्होंने जब प्रश्न किया प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी को कि जप और अध्ययन में हम जप कर रहे हैं लेकिन अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये उचित है? प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो ये गुरु अवज्ञा है, ये एक अपराध है हरिनाम के प्रति। So what I wanted to say is that reading is meant for enhancing our devotional service to Krishna. तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारा अध्ययन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रेममयी जो सेवा है उसको बढ़ाने के भाव से होनी चाहिए। So how to be focused in devotional service? So for that we need good intelligence, spiritual intelligence. So to develop that spiritual intelligence, we should read Shastra. कि कैसे हम भगवान की सेवा में एक निष्ठ हो सकें, और उसके लिए हमें आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता है, और उस आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। One thing is that these books are also another form of Krishna. So if any way one comes in contact with these books, one will become purified, and automatically he will develop good attitudes. तो एक दृष्टिकोण तो यह है कि चूंकि पुस्तकें जो है भगवान कृष्ण के साहित्य अवतार हैं, ये तो निश्चित रूप से कोई भी किसी भी येन केन प्रकार इनके संपर्क में आएंगे तो उनकी शुद्धि होगी और उनके अंदर धीमे धीमे भक्तिमय जो गुण है वो उत्पन्न होंगे। Of course, there should be favorable attitude. और निश्चित रूप से उनका जो भाव होना चाहिए वो अनुकूल होना चाहिए। And one purport in Bhagavad Gita, Prabhupada, he explains, that is at the end of the 8th chapter. 8th chapter, last verse purport. 28 verses are there. 28th verse purport. Prabhupada speaks about 9 stages of Bhagavad Gita study. तो 8वें अध्याय के 28वें श्लोक जो कि अंतिम श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं 9 स्तर अध्ययन करने के।
8th chapter, 28th verse purport. So that there is nine stages of Bhagavad Gita study. तो वहां पे 9 So स्तर generally we pass through all these stages until we develop love for Bhagavad Gita. तो समान रूप से हम लोग ये स्तर को पार करके जब तक हम लोग भगवान या भगवत गीता के लिए जब तक प्रेम नहीं आता हमारे हृदय में, and particularly about conducting quizzes on the Shastra, etc. That is okay. We may like to study them in that way, but there should not be giving up prizes for attending, writing some quiz on Shastra and etc. Because as soon as you give prize, that means you become motivated. That means you are not anasakta, means you are not detached from the fruits of action. तो बहुत गंभीर बात बता रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर कि जैसे जो प्रश्न उत्तर होते भी हैं तो ठीक है, एक्सपर्ट्स को अध्ययन करना चाहते हैं तो ठीक है, उचित है ये, लेकिन उसका कोई उपहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपहार होते ही एक मन में आसक्ति या उस विषय को प्राप्त करने के लिए फिर हम अध्ययन करते हैं, जबकि ये अनासक्त विषयान, ये बिना किसी हेतु के हमें अध्ययन करना होता है। We see in the beginning, from beginning to end in Bhagavad Gita, it is told that we should be detached from fruits of action, and in bhakti also we should be anyavilashita. So, but if we are desiring some material gain from reading Shastra, then that distracts us from the main goal of studying Shastra. तो पूरी भगवत गीता में अन्य शास्त्र भी हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार से हमको अपने फल से अनासक्त होना है, कर्मों के फल से अनासक्त होने हैं। तो अगर हम आसक्त होकर के वो कार्य कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो उसका हमें इच्छित फल प्राप्त होना है उससे हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। Regarding academic style of studying, in academic world, they don't subscribe to what they are studying. Means when they study Shastra, they don't accept it just for the sake of some mundane purpose they may study. तो ये जो हमारे बाकी जो अध्ययन होते हैं, जो तथाकथित हमारी शिक्षा का अध्ययन होता है, उसके जैसे अध्ययन नहीं है ये। वहां पर हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी अध्ययन करते हैं क्योंकि हमें कुछ भौतिक उपलब्धि प्राप्त करनी होती है। How to avoid that one? From the beginning only, we should be under a guidance of a spiritual master or a bona fide devotee coming in parampara to study Shastra. तो कैसे इससे बच सकते हैं कि शुरुआत से ही हमें किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ऐसे उनके निर्देशन में हमें ये अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। The very first purport of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, he says that Bhagavad Gita should be read under the guidance of a bona fide who is coming in discipleship. तो भगवत गीता के पहले श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका अध्ययन भक्तों के संग में, प्रामाणिक भक्तों के निर्देशन में ये अध्ययन होना चाहिए। In that way, we will avoid this academic style of. तो इस प्रकार से हम जो है ये भौतिकवादी शिक्षा के अध्ययन के जो प्रणाली है उससे हम बच सकते हैं। I'm sorry, Prabhu, you said something I could not hear, Prabhu. Means I said that is answer to the question. Okay. Thank you, Mataji Prabhu. asked. Thank you, Prabhu. Any other questions? Asiman Krishnam, Prabhu, you had some question, Prabhu. You can ask. Hare Krishna, that was Pranam, Prabhuji. Prabhuji, it was a nice, inspiring class about reading Srila Prabhupada's books. My question is, Prabhuji, actually,
in our devotee circle itself, we make sometime reading circle or anything, devotees join sometimes, and then, they I don't know what is the reason. Sometimes it is very difficult. They may not continue. Only few devotees we lose after that reading, because we have to read in devotee circle. That's how to encourage them, how to bring back them, or how to encourage this reading the books. So okay, you want to translate the तो प्रभु जी का प्रश्न है कि बहुत सुंदर रूप से आपने कथा हमने सुनाई आज प्रभुपाद जी की पुस्तक अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी जो आपने बताया किस प्रकार से भक्तों के संग में हम पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और जब हम लोग ऐसे कुछ समूह बनाते हैं, भक्तों का समूह जिसमें अध्ययन करते हैं, कुछ समय के पश्चात कुछ भक्त लोग उस समूह में नहीं आ पाते हैं, तो फिर भक्तों का समूह नहीं मिलता है तो थोड़ी कठिनता होती है। तो कैसे उनको हम प्रेरित करें, उत्साहित करें कि वो हम फिर से समूह में आकर के हमारे साथ अध्ययन करें? So I said in the lecture that present society doesn't encourage reading books or scholarship. तो जैसा मैंने बताया प्रवचन में कि इस वर्तमान परिस्थिति में ये अध्ययन करने की जो संस्कृति है वो उत्साहित नहीं करती है वर्तमान जो समय है प्रणाली। Of course, we may see that broader society, there are so many books are being written, or so much study is going on, so much scholarship, discussions, debates on the news channel, media platforms. But we are not discussing about that kind of scholarship or study. हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सा ऐसा प्रचार हो रहा है, प्रसार दिखता है कि ऐसा विज्ञापन दिया जाता है कि बहुत जगह पर अध्ययन चल रहा है, और ऐसे कई समाचार उसमें हमें देखने को मिलता है, ये मीडिया में देखने को मिलता है ये, लेकिन हम उस प्रकार के अध्ययन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। So to understand Shastra, we need to develop good character and that spiritual intelligence to realize that, that words of the scriptures, to understand the intricacies of the scriptures. That is very difficult in modern society. क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए सिर्फ अध्ययन करना ही नहीं, उसके साथ में ये जो गुण है, दैवी गुण उत्पन्न करना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम शास्त्रों के निहित जो गुह्य तत्व हैं उसको समझ सकते हैं। और ये वर्तमान जो प्रणाली है, जो कि समय चल रहा है, आधुनिक समाज, इसमें इस प्रकार का गुण नहीं दिखता, इसलिए अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होती है। ISKCON, we are trying to pressurize them, read like that. और हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महारामृत संघ में भी हम लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अध्ययन करिए आप, अध्ययन करिए आप। That's okay. We need to push because he said that it is movement. तो ये भी ठीक है, ये इनके प्रकार लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन but along with that we have to create an environment where study, hearing becomes natural and spontaneous. लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ऐसा प्रयास करना होगा जहां पर कि श्रवण करना, अध्ययन करना ये एक स्वाभाविक क्रियाकलाप हो जाए। So it is natural to lose devotees in modern society because there is no proper environment where they can cultivate Krishna consciousness and make progress. इसलिए आधुनिक समाज में भक्तों का इस प्रकार से दूर जाना समूह से ये स्वाभाविक है, ये क्योंकि इस प्रकार का वातावरण ये उसको उत्पन्न करना ये कठिन है। More than 50% of Prabhupada disciples, they discontinued Krishna consciousness, or they were not able to follow vows of initiation, chanting 16 rounds, etc. जैसे श्री प्रभुपाद जी के भी बहुत से शिष्य जो थे, काफी शिष्य वो फिर भक्ति से च्युत हो गए वो, और फिर जो उन्होंने वचन लिए थे उसका भी पालन बहुत से लोग नहीं कर पाए। Because the whole modern society doesn't support Krishna consciousness.
क्योंकि पूरा ये आधुनिक समाज जो है ये कृष्ण भावना भावित जीवन को ये उसके अनुकूल नहीं है. Even if you maintain Krishna consciousness, but we will not make much progress in Krishna consciousness. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ऐसे समाज में हम लोग हो सकता है कि इसको मेंटेन कर पाए अपने कृष्ण भावना भावित जीवन को, लेकिन ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे. So we see often that we practice chanting or Krishna consciousness for many years, but we still have so many anarthas or so many bad qualities. हम देखते हैं कि कई कई वर्षों तक अभ्यास करने के पश्चात भी, जप करने के पश्चात भी अभी भी देखते हैं कि हमारे अंदर अनर्थ हैं और बहुत से ऐसे जो प्रतिकूल आदतें हैं वो अभी गई नहीं है हमसे. So because we are all in bad association. क्योंकि हम लोग इस आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि हम लोग जो हमारा संग है वो शुद्ध नहीं है. So and in preaching also we do preach, and we preach to so many people and so much after so much endeavors. So we make devotees, often they leave, or even if they remain, they don't make much progress. और प्रचार में भी हम देखते हैं कि इतना प्रयास करने के पश्चात, बार बार प्रयास करने के पश्चात भी वो आते हैं कभी कभी, लेकिन फिर वो जल्द ही छोड़ के चले भी जाते हैं बहुत से लोग. So we should try as far as possible to encourage everyone, but along with that we have to create a environment also. तो जितना हो सके हमें हर संभव प्रयास तो करना चाहिए, और साथ ही साथ में हमें एक अनुकूल वातावरण, जैसे बताया गया, प्रभु जी ने बताया, सादा जीवन, उच्च विचार, उसको भी उत्पन्न करने का प्रयास करना होगा. Okay, thank you, Prabhuji. Nice. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. It's quite late for you in India. It's more than 10 now. So thank you so much, Prabhu. It was very inspiring, very enlivening, the way you built up the topic.